एक टीचर थे जिनका मैंने कई बार नाम लिया है, उनकी एक सेंटेंस मुझे याद है, clothes lend dignity to some people lend dignity to the clothes. जहाँ वो बैठ जाए वो हट गया. I was seeing some video, and these days you have all kinds of issues, videos like PFI है या नूपुर शर्मा है या अगेंस्ट या सुप्रीम कोर्ट है, or this people who are saying that she should still be punished, others who are saying rising to her defense and all that. You say properly, in fact, a mountain has been made of a molehill. Absolutely. Mountain and molehill. But there is behind all this, there is some substantial problem. The problem is that 2014 was a watershed in India's political history. Till then, Congress was there, and Congress was in the habit of ruling, and when it fell a little short of majority, it would support somebody, and then when it gained its majority, it would pull the rug from under him and again rule, like Chandrasekhar and Devagowda, people who were for a year or something, and then the Congress took them. And Bajpayee ji was the only one who was doing so well for 5 years that the Congress really began to believe that they will not win that 2004 election. But everybody was surprised, and Congress won the election. For 10 years, they continued with what they, and that was a period which was full of many scams, this lakhs of crores and something, which is what ultimately cost the government, cost Congress the government. The entire history of Congress rule in India was, in a way, gradually, in the name of equality, minority, secularism, Hindus were on the defensive most of the time. Defensive. You see, for example, take the case of Ram Janam Bhoomi Mandir. Compare it with what was done to Somnath in 48. And compared to that, for years, we were, and all kinds of opposition. And the interesting thing is that the Hindu causes were opposed by Hindus themselves, those who were born in those families, apart from Congress. Congress was very competent in its mathematics. The mathematics was simple. The minority, they created the category minority. Once you have a constitution which says all citizens are equal, there can be no minority. But they created the sense of minority. And till very late, that minority always meant only Muslims. Christians Not, Christians no, even now, no. I mean, where do you find, have you ever found any reference to the Christians are a minority, they should be given special favors or something? Mostly, or the Jains, or the Buddhists, or the Sikhs. Gradually later on, they introduced laws that Jains are not Hindus and Sikhs are not Hindus, and this kind of what they inherited from the British. They ruled by dividing this society. First division, separate Hindus from Muslims. How do you separate? Well, you tell Muslims that you are threatened by them. Your existence is threatened by them, and we will protect you. So, a kind of a vote bank. And then among Hindus, you divide the so-called Swarnas from, they again created a category, Dalit. Dalit is not a category of Hindu social thought. उसमें
शूद्र है, शूद्र है, दलित नहीं है. दलित इज नॉट अवर कैटेगरी सोशोलॉजी का. किसी धर्मशास्त्र में आपको दलित नहीं मिलेगा. तो ये शब्द कहाँ से आया? दलित is literally means oppressed. So it was created, I think it was used once maybe by Ambedkar in one of his lectures. But Ambedkar was a very different person. There are a lot of, in fact, Ambedkar also has been built up as an icon for Dalits. But he was not very partisan or parochial, you see. He was not partisan or parochial. Anyway, so they created this category. So you separate them. And then they created another category, OBC, other backward classes. Now this from, I think, I don't remember the name, 1932, there was an English gentleman who for the first time, did some caste analysis and created the other backward classes. But they were given a constitutional status late, after 47, you see. So OBC, and among OBC, Dalit are the most OBC, most backward. And then among the Dalit also, there are some who are more, there is a endless attempt to divide. And reservation originally was 24.5% for Shudras. Nobody minded it. But it has now gone up to 50% somewhere. Some states have gone up to 70%. And with the reverse injustice, you see. For example, I think the most underprivileged people in many states today are the Brahmins. Because you see, because they are Brahmins, so they are not entitled to any special favor. But in Mithila and other places, among the poorest are the Brahmins. But they don't get any. Now, by combining the OBC, Dalit and the Muslim vote bank, you see, they created a bank which repeatedly mooted Congress to power. You see, Congress to power. And the disadvantage was of the people of the Hindu society, which has been divided and which is... Now this was called at one time social engineering. And in fact it was a social division, creating social divisions. Minority banaya, then minority commission banaya, then minority minister banaya. तो ये They are पंडित जी के वक्त से चल रहा है, उधर से तभी से चल रहा है. I will give you two examples. For example, Hindu Code Bill was introduced by Pandit Nehru. What is Hindu Code Bill? A social legislation of Hindus' customary practices. So Hindu can marry only once. He can't marry second time. It will be bigamy. Hindu Code Bill का बड़ा strong provision है. And of course, inheritance laws थोड़े liberalize किए. But the main drive is that the Hindus are restricted in increasing their numbers. They can marry only once. और अभी आप अगर डेटा देखें रेट ऑफ ग्रोथ का, तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टुडे इज फार बिलो द मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ. Far below. Far below. In fact, some other maybe have a little better. दूसरा देखिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं. Hindu Charitable Endowments Act was passed by Nehru, by which all major Hindu temples were taken over by the government. Government administers all the major Hindu temples. जहाँ बहुत चढ़ावा आता है, करोड़ों में, हजारों करोड़ों में. और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होता है. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, फॉर एग्जांपल इन तिरुपति, द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर क्रिश्चियंस एंड देयर आर सम मुस्लिम्स. एंड उनके जो ठेके होते हैं, जैसे प्रसाद बनाना है, सड़क बनानी है, it doesn't go to Hindus.
It is also the same in Vaishno Devi now. In Vaishno Devi also. And the money and you know the government is in full control of जो चढ़ावा चढ़ता है. And a large amount of that is used for non-Hindu purposes. Hardly small percentage, very small percentage is used for maintenance of temples. Very small percentage. What is it used for then? This. It is used for even building prayer grounds for other religions, providing even education subsidies to other people. Sending them to Hajj. Even, तो ये लोग आते कैसे? How did they become part of the board? Government Rajshekhar Reddy, Andhra mein, he was the chief minister. People discovered he was a Christian only when he was buried. They thought he was a Hindu. See, जिसका बेटा जगन रेड्डी है. Who will think Jagan Reddy is a Christian? But he is continuing the policies. There are so many things, small things like, I remember in around 71, right, 71, in those days it was radio, TV itna nahi tha. You could listen to days and days to the radio. You will not hear the word Hindu. The word Hindu will not be there. The word started getting spoken when Bala Saheb Thackeray came up with the slogan, Garv se kaho hum Hindu hain. Now, what does that mean? That means till then, abhi bhi hota hai. You know, officers of the government, let us say, on Tuesday, I have seen it myself. वो जाएंगे, गाड़ी रुकेगी हनुमान मंदिर के सामने, अंदर जाएंगे, पंडित जी कहेंगे जरा हल्का लगाना, हल्का, और बाहर निकलेंगे तो उसको फिर हटा के फिर जाएंगे ऑफिस. तो फिर जाते क्यों? They don't want, we see, look, they want to do it, but the Christian who goes to the church is a good Christian. Muslim who goes to the mosque is a pious Muslim. A Hindu who goes to a temple is a communal person. This was the atmosphere. I am not wrong, I tell you. Communal सारा नाम ही इन सोनिया गांधी ने जो लास्ट में 2013 में लास्ट में दोबारा अटेम्प्ट किया, 2 बार किया, 9 में 13 में, एक उसने स्पेशल एक्ट बनवाया था जो कि फॉर क्योंकि इतना फियर्सली अपोज किया उसको किया गया, उसका ये था कि कहीं भी दंगे हों किसी प्रकार के भी, द हिंदू शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. आप पढ़ लीजिए, राजेंद्र सच्चर वगैरह ये सारे मेंबर थे. ये जो कौन है, मंधार वो मेंबर था. आपके कई वेल नोन नेम्स हैं, आज भी घूम रहे हैं. दे वर द मेंबर्स ऑफ दैट. शी हैड ए स्पेशल कमिटी, दे ड्राफ्टेड इट. वो आप पढ़ लीजिएगा, 2009 का एक्ट देखिए, 13 का. वो तो दैट वुड हैव बीन द एंड. अगर 2014 में मोदी नहीं आते, दैट वाज द एंड. बाकी जो बचा खुचा था, आई यूज्ड टू से लॉन्ग बैक that the Indian government has been trying to de-Hinduize India. You see? De-Hinduize. And Why? Because Nehru is on record. I am British by my education. I am Muslim by culture. I am a socialist by my belief and a Hindu by accident. Yeah, आप पढ़ लीजिए. I will give you another example. A French archaeologist in 1954 came to see him. And he said, that's very nice, now India is free. We will now be able to, reconstruct some of those famous things that have been that are in ruins, lying in ruins. Nehru is on record. अभी मैं नहीं, कहेंगे तो आप, मैं दनीनो जी से बिल्कुल एग्जैक्ट रेफरेंस, ही इज ए फ्रेंच मैन, दूंगा उनको. Nehru is on record. You want to preserve what we want to destroy. आम जो अब यही लड़का है, ये खान है, इस तरह के आम मुसलमान जो है और आम हिंदू में कोई फर्क नहीं है. ये जो पॉलिटिकल क्लास होती है ना ऊपर, इधर कोई जो बड़े जो फैसिस्ट हिंदू हो जाएं या मौलवी हो जाएं,
है ना, मौलवी हो जाएं, मौलवी हैं या पॉलिटिकल लीडर हो जाएं, ये लोग पूरी कम्युनिटी को ऑन रैंसम रख देते हैं. इसी सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट the I have taught in JNU where my classes used to be full of all kinds of religions and people. And in fact, I was telling maybe Tana the other day कि a girl, उसका नाम भी हिंदू नाम ही था वैसे, बट नॉर्थ ईस्ट की लड़की, नॉर्थ ईस्ट की लड़की थी. तो वो एमफिल का डिसर्टेशन जब पूरा हो गया, मैंने पढ़ा दिया सारा, उसने टाइप करा के बांध के लाई, पहले खोला, पहले आई एम ग्रेटफुल टू गॉड. तो मैंने कहा, Are you're a Christian? He said, yes. I never realized. I never cared also. One never cared. And the one English department where I have gone most often, where I have most followers, is the Aligarh Muslim University department. My own student is head of the department of linguistics there, Imtiaz. So we are not talking of Muslim. We are talking of the politics of the government, which created this divide first. कि आपने देश को, look, अगर जैसे पार्टीशन हुआ, महात्मा गांधी and Nehru used to say that we will not allow the country to be divided on religious grounds. Such a division will take place on our dead body. They are on record. But in 1945, in Kingsway Camp, Delhi, All India Congress Committee, they met and they passed a resolution accepting the division of the country on religious grounds. Accepting. And the dead bodies, ना तो नेहरू की ना गांधी की, डेड बॉडीज हमारी पंजाबियों की या बंगालियों की. डेड बॉडीज वर ऑफ पंजाबीज और बंगालीज. एंड लाख, मिलियंस. माई मदर यूज्ड टू से कि काका, राजे बदलते थे पहले, रियाया नहीं बदलती थी. पहली बार हुआ दैट दी रियाया बदल गई. एंड यू नो ट्रेन्स कट के आ रही हैं, जा रही, यू नो ऑल दैट. यू सी, okay, when you accept division on religious grounds, I'm not saying you send everybody away, but if you out of India you create Pakistan, तो बाकी क्या बचा? हिंदुस्तान. And India is known as Hindustan throughout Asia, particularly Middle East. Hindustan, for at least last 1000 years, it's known as Hindustan. And before Islam, the Arabs used to call it the Hindu land, land of the Hindus. यही कहते थे. China even today calls it Hindu. Hindu. China's name for India is Hindu. I was very surprised when I went to China. तो मेरे आगे अमेरिकन था, तो अमेरिकन को तो उसने जूते भी उतरवा दिए चाइनीज़ ने, और एयरपोर्ट पे, और सारे ये भी जैकेट निकाल, ये निकाल, पूरा कर. एंड मैं गया तो चीज़ हिंदू, ऐसे दिया गो. मैं कहा यार बड़ी इज्जत है, हमारी भी इज्जत है कहीं इतनी. कोरिया में भी है. इन साउथ एशिया इंडियंस आर हैविंग ग्रेट रिस्पेक्ट बिकॉज एंटायर एशिया ओज इंटेलेक्चुअली टू इंडिया, बुद्धिज़्म के कारण. सिर्फ बुद्धिज़्म नहीं, दूसरा धर्म भी, जैसे वियतनाम इवन टुडे हैज़ 21 शिवा टेम्पल्स. इंडिया लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड इज इन कंबोडिया, नॉट इन इंडिया, अंकोर वाट. तो एनीवेज, तो ये बचा तो हिंदुस्तान, पर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से वो शब्द निकाल दिया. कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान शब्द नहीं है. इंडिया दैट इज भारत. तो हिंदुस्तान कहाँ गया? क्योंकि वो गायब, वो खत्म करना है ना. आप इंडिया रूल नहीं कर सकते अगर आप हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करके उसको वीकन नहीं करोगे. देन द टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी दैट कांग्रेस वाज. तो इसमें महात्मा गांधी का what was? महात्मा गांधी is a very, I mean, in my view, I think there are two ways of looking at Mahatma Gandhi. I am trying to put it very nicely. You see, for example, Gandhi supported the Khilafat movement in 1920s. अब खिलाफत मूवमेंट क्या थी कि टर्की में मतलब खलीफा को हटा दिया. खलीफा हटाया टर्की में,
राइट्स केरला में, और मारे जा रहे हिंदू। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत वो खलीफा की मूवमेंट थी, वो खलीफा बन गया खिलाफत। लोगों ने सोचा अंग्रेजों की खिलाफत, एंड महात्मा गांधी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट। एंड देयर वर टू अली ब्रदर्स, one of them he made the president of Congress in 1923 or 24, Kakinada Congress में. And I remember having read that D.V. Puluskar, बड़ा ग्रेट क्लासिकल सिंगर थे, उनको बुलाया गया था। उनको लोगों ने कहा कि आप गाइए, और वो गाते थे, वो भजन गाते थे, रघुपति राघव, बड़ा फेमस था उनका, D.V. पुलुस्कर का, रघुपति राघव राजा राम। तो वो जो मोहम्मद अली जो 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 दूसरे जो चेयर कर रहे थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, स्टेज पे, ही सेड नो, यू कांट सिंग दिस व्हेन आई एम सिटिंग हियर, यू कांट सिंग, ये रिकॉर्ड्स हैं। एंड यू नो, पुलुस्कर साहब तो उनको क्या लेना न देना, वो तो सारे नालों सुथरा चंगा, पास न रखे तेला, उनको कोई डर नहीं कुछ नहीं। उन्होंने कहा हजूर ऐसा है, लोगों से पूछता हूँ, कहेंगे तो गाऊंगा, नहीं तो नहीं गाऊंगा। बोले गाऊं? उनका गाइए। एंड ही sang. Muhammad Ali got up from the stage and went away. After he had finished his bhajan, he came back. And Gandhi supported it. So now you understand, begin to understand Gandhi. आपने गॉडसे की स्टेटमेंट पढ़ी है, जिसने गांधी जी को गोली मारी? आपने पढ़ी नहीं, आप पढ़िए। और गॉडसे की फांसी लगने से एक दिन पहले रात उसने जो लेटर अपने पेरेंट्स को लिखा, वो पढ़िए। गॉडसे सेज कि मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ, आई एम नॉट ए किलर, गॉडसे बिलोंग टू ए वेरी गुड फैमिली। उसका चेहरा भी देखिए आप, है ना। तो गांधी promoted appeasement because जिना, आपको ध्यान होगा कि जिना बिफोर गांधी केम, गांधी के आने से पहले जिना वॉज ए वेरी फायर ब्रांड नेशनलिस्ट, जबरदस्त देशभक्त आदमी था, और कांग्रेस का मेंबर था 1905 में। गांधी ने उसको एलियनेट किया। ये काफ़ी लोग पसंद नहीं करेंगे इस बात को। जिना, अरबिंदो और तिलक, ये तीनों बड़े, तिलक और जिना बहुत दोस्त थे। तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और दोनों बॉम्बे के थे, बड़े फ्रेंड थे पक्के। उनकी एक 1916 में लखनऊ में पैक्ट भी हुआ था। अब जिना, तिलक और अरबिंदो, अरबिंदो रेडिकल था उस वक्त। This combination was against Gokhale. Gokhale was a moderate, स्वराज, हिंद स्वराज, है ना, मतलब ऑटोनमस, ऑटोनॉमी चाहिए हमको, हमें ऑटोनॉमी चाहिए। सो गोखले was backed by the British, but गोखले was being, मतलब ब्रिटिश एक्सेप्टेड हिम। ये ठीक है, ऑटोनॉमी क्या, आप अगर पूरा पढ़ें मॉन्टेग्यू, चैम्सफोर्ड, रिफॉर्म्स तक, किस तरह इंडियंस वर ओनली आस्किंग फॉर नॉट कंप्लीट फ्रीडम पर ऑटोनॉमी। ये हमारे भी अफसर होने चाहिए, जज भी हमारे होने चाहिए, कमिश्नर भी हमारे होने चाहिए, यू नो, दे वर ओनली आस्किंग फॉर दैट। बट ब्रिटिश रियलाइज्ड कि दिस कॉम्बिनेशन ऑफ तिलक, जिना एंड अरबिंदो बड़ा डेडली है। Aurobindo at that time was a lecturer in English in Baroda, University of Baroda में, Baroda में। So they devised a plan. पर उस प्लान में क्या था कि इन तीनों को तोड़ना है। तो क्या किया, तिलक को अंडमान भेज दिया। उसने कुछ लिखा पेपर में, वो छापते थे ना एक न्यूज़पेपर, उनको उसको अंडमान भेज दिया। और अरबिंदो कलकत्ता में, अरबिंदो का डिस्टेंट कनेक्शन था
वो किसी एक वो जो कौन था, वो बस बोस था, 7 साल का लड़का, हु वॉज हैंग्ड, उसको पकड़ लिया अरविंदो को, वो जेल में डाल दिया। अब वो तो अब जेल में डाल दिया, उनको तो 2 दिन में ही उनको भगवान कृष्ण नजर आ गए जेल में। तो वो जैसे छूटे, वो सीधे वहाँ से निकल के पौंडीचेरी चले गए, विच वॉज ए फ्रेंच। अरविंदो वहाँ चले गए, वो साधु बन गए। कहाँ, ही वॉज ए रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट और टीचर, तो ही टुक दैट, ही डिड ग्रेट जॉब। उनको अलग करना है, दिस वॉज द ब्रिटिश पॉलिसी। तो अरविंदो को वहाँ चले गए, और जिन्ना को दे एक्सप्लेन टू जिन्ना दैट Muslims are a minority, Hindus are a huge majority, your community will be devoured, you listen to us, you be with us, we will give you a separate state। मतलब ये सेपरेट इलेक्टोरेट, पहले आपको याद होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट, रिजर्वेशंस, है ना, और ये सारा उन्होंने शुरू किया। जिन्ना स्टिल वुड नॉट हैव गॉन विद देम, जिन्ना फिर भी अंग्रेजों की बात नहीं मानता। ही सॉट ए मीटिंग विद गांधी। ये कोई 1910, 11, 12 इस तरह की बात है, समथिंग, आई एम नॉट श्योर ऑफ द डेट, बट गांधी केम इन 1908, उसके को 5-7 साल बाद। और अगर आप उनकी फोटो देखो ना, वो बॉम्बे में आए हुए, इतना पगड़ा बांधा हुआ है, और ये हाथ में सूटी ले रखी, क्योंकि वहाँ तो वो 3-पीस सूट पहनते थे। वो तो वहाँ की साउथ अफ्रीकन आर्मी में भी थे, ही वॉज इन द आर्मी एंड ही वॉज ए लॉयर। लोग कहते हैं उनके सपोर्टर के वहीं से वो सिंप्लीफाई होने शुरू हो गए थे, बट बेसिकली ही रेड रस्किन, ये हमको भी पता है, रस्किन का इकोनॉमी पढ़ी, टॉल्स्टॉय का पढ़ा, और उसका थोरो का वार्डन पॉन्ड पढ़ा, तो इसे कर करा के, बट वो आए, ही वॉज सपोर्टेड, he was a सरकारी फ्रीडम फाइटर। 62 में जब वॉर हुई थी ना, तो गवर्नमेंट ने कम्युनिस्ट पकड़ने शुरू किए, पर सीपीआई वाले नहीं पकड़े। मेरे दोस्त ने बताया, चंडीगढ़ में पुलिस वाले आए एक के घर, तो देखे, वो कहता यार यहाँ कैसे आ गए, ये तो सरकारी कम्युनिस्ट है। आप जब भी देखो क्या होता था, गांधी जी कॉल देते थे, है ना, कॉल देते थे, तो शाम तक जितने बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर होते थे, नेहरू, आसफ अली, आचार्य नरेंद्र देव, मौलाना आजाद, इन सब लोगों को, ऑल दीज पीपल वर, शाम तक ना उन सबको इकट्ठा बहुत बढ़िया कारों में या बढ़िया व्हीकल में बिठा के अल्मोड़ा जेल में ले जाते थे। अब अल्मोड़ा जेल तो सैनिटोरियम है ना जी, अल्मोड़ा जेल में रखते थे इनको, वहाँ आलूचे खाने, आलू बुखारे खाने, है ना जी, आराम नाल। और जो आम आदमी होता था, वो अपना मूर्ख बन के सड़कों पे निकल आता था, हिंदू मुसलमान सिख सारे, उनको लाठियाँ पड़ती थी, वो अपना आलू बुखारे खाते थे वहाँ। और वो वहाँ क्या करते थे, आचार्य नरेंद्र देव बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, 16 सब्जेक्ट में एमए थे। अच्छा, वो लेक्चर, वो जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, वो बोलते थे, ये सारे सुनते थे। मौलाना आज़ाद भी पढ़ा लिखे थे, पर वो अरेबिक पर्शियन के स्कॉलर थे, तो वो लेक्चर देते थे और हिस्ट्री सुनाते थे, और नेहरू वगैरह सारे सुनते थे। हिस्ट्री H.G. वेल्स की वर्ल्ड हिस्ट्री, नरेंद्र देव ने एक बार जब वो अल्मोड़ा में थे, तो इन्होंने कहा होगा कि कुछ हिस्ट्री का पता नहीं है, कोई हिस्ट्री समझाओ, तो उन्होंने H.G. वेल्स की हिस्ट्री, उन्होंने रोज़ लेक्चर देना, नेहरू ने रोज़ नोट लिखने, रात को जाके वही चीज़ें जो सुनी वो इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिख देनी। नाउ माई ग्रैंडफादर सेड, कोई फ्रीडम मूवमेंट नहीं। कहते जब कोई मूवमेंट होती थी ना, एक टॉमी, इंग्लिश सोल्जर, नॉट इंडियन सोल्जर ऑफ द इंग्लिश आर्मी, द इंग्लिश सोल्जर, उसको टॉमी कहते थे, और इंडियन सोल्जर को पांडे कहते थे, नॉट पांडे, टॉमी। सारे इंडियन सोल्जर्स को पांडे कहते थे, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो। अंग्रेज अफसर बुलाता था, ए पांडे। पांडे बहुत थे, पांडे बहुत थे, और ठाकुर बहुत थे उस आर्मी, बंगाल आर्मी कहते थे उसको, और मुसलमान थे, है ना, उसमें ये आर्मी होती, सबको पांडे कहते थे, पांडे।
तो ये टॉमी, मेरे ग्रैंडफादर कहते, एक टॉमी अमृतसर में कहते चौक में खड़ा हो जाता था कमीज उतार के, कमीज बनैन उतार के, पैंट पहनी हुई है और हाथ में उसके होती थी राइफल। 3-3 मील तक कहते कोई इंडियन नजर नहीं आता था। डिप्टी कमिश्नर की कोठी की सड़क जो होती थी वहां से कोई इंडियन नहीं जाता था, इतना डरते थे। फ्रीडम फाइट जिन्होंने की उनको तो फांसी लग गई, जिन्होंने फाइट किया, अपोज किया, उनको तो फांसी लग गई। खुदीराम बोस 18 साल का था, करतार सिंह सराबा 16 साल का, लुधियाने का 16 साल का लड़का, भगत सिंह 21 साल का, वो 23 साल का सुखदेव, वो 22 साल का। मतलब ये लड़के थे जो मतलब कि बम मारते थे, हटाते थे। तो ये लोग तो लड़े, ये इनको फांसी फूंसी लगी। 1937-38 में गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला सारे दफ्तरों में कि डोंट एड्रेस गांधी एज मिस्टर गांधी, एड्रेस हिम एज महात्मा गांधी। चिट्ठी दे गए। वो महात्मा भी अंग्रेजों ने बनाया, अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करता था, कहने को महात्मा। अच्छा, फिर फादर ऑफ द नेशन, फादर किस सेंस में फादर, हमको तो समझ ही नहीं आया। इंडियन मेटाफर फादर का है ही नहीं, हमारे यहाँ फादर कोई नहीं कहता, मदर होती है, माँ, है ना। फादर तो यूरोप वाले कहते। पार्टीशन हो गई, प्राइम मिनिस्टर चूज होना है, तो 28 कांग्रेस कमेटीज आउट ऑफ 29, मतलब एक को छोड़ के जितनी भी थी, सब ने कहा कि पटेल को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, पर गांधी ने उनकी बात नहीं मानी, नेहरू को बनाया। क्यों? कि नेहरू का फादर उसका सारा खर्चा करता था। अब गांधी की जो सादी जिंदगी थी ना, बकरी का दूध पीना, थर्ड क्लास में ट्रैवल करना, बहुत महंगी जिंदगी थी। क्योंकि थर्ड क्लास में ट्रैवल करते थे तो पूरा डिब्बा खाली होता था और गांधी बैठा हुआ, और वो बकरी और फल खाना और ये खाना, लूचे खाने, मतलब ये कोई आम आदमी की, तो आम आदमी ऐसी सिंपल लाइफ तो हमें भी बड़ी सूट करेगी अगर हम अकेले बैठे हों डिब्बे में। सुभाष बोस स्टूड अप फॉर प्रेसिडेंटशिप ऑफ कांग्रेस। सीतारमैया गांधी ने खड़ा किया, सीतारमैया हार गया तो गांधी रुस गया और नाराज हो गया। सुभाष को पता लगा, आई एम नॉट हैप्पी। सुभाष बोस को पता चला कि बाबा तो बड़ा दुखी हो रहा है ना, तो क्या होगा, तो उसने रिजाइन कर दिया, कांग्रेस भी छोड़ दी। एंड गांधी वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि जो बंदा गांधी के बराबर या गांधी से ऊपर उठने वाला था, उसको वो या निकाल देता या हटा देता या कुछ कर देता। नेहरू बड़ा चतुर था। नेहरू गांधी का कोई भी जो उसकी जो थॉट था ना, थॉट भी उसके ऊपर के ही थे, मतलब इकोनॉमिक जैसे कि भाई गाँव को करना है, वो सिंप्लिसिटी वाला। मतलब वो नेहरू ने तो कभी भी उस तरह की धोती शोती नहीं पहनी ना, नेहरू का तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेंसिव। नेहरू को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स सिर्फ जिन्ना से था, ज़बरदस्त इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि तो जिन्ना की हाइट ज़्यादा थी उससे, और जिन्ना बहुत सोफिस्टिकेटेड था। आप उसकी कभी ड्रेस देखो ना, तो जिन्ना बड़ा स्नॉब था, बड़ा स्वाब था। मैंने बताने लगा था कि जिन्ना ने फिर भी अंग्रेज़ों की बात नहीं माननी थी। जिन्ना तिलक का बहुत खास दोस्त था, पर वो गांधी को मिलने गया, गांधी ने अपॉइंटमेंट दी उसको। अपॉइंटमेंट देने के बावजूद 2 घंटे बाहर बिठाए रखा। एंड जिन्ना वाज वेरी अनॉयड। देन ही डिसाइडेड टू गिव अप द कांग्रेस, छोड़ दी उसने। और एक 1948 की जिन्ना की लेटर है गांधी को, वो मैं बीच में रिसर्च नहीं कर पाया, पर वो लेटर है, वो मिल जाएगा। उसमें उन्होंने बड़ी 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 सैड लाइन लिखी है। ही सेज, डियर मोहनदास गांधी, आवर रिलेशनशिप स्टार्टेड इन लव, काइंडली अलाउ इट टू एंड इन लव।
ये है। पर इसने तो उसको करना था ना, अंग्रेज़ों का फार्मूला था कि इसको जिना को सेपरेट करना, फिर जिना जिना वाज ए, जब पहली बार मुस्लिम लीग का आइडिया आया, जिना वाज अपोज टू इट, बाद में ही वॉज फोर्स्ड इनटू इट बाय कांग्रेस। अच्छा और बताऊं आपको, 1945 में एटली वॉर के बाद बना प्राइम मिनिस्टर, उसने एक कमेटी भेजी 3-4 मेंबर्स की, क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि हिंदुस्तान को डिवाइड नहीं करना, पर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, ये दो, बंगाल और पंजाब, उनको इंटरनल ऑटोनॉमी देनी है। अच्छा वो भी बड़ी, मतलब जैसे लोकल लॉ एंड ऑर्डर है, लोकल पुलिस है, लोकल टैक्स है, ये, पर जो इम्पोर्टेंट थे जितने, फाइनल फाइनेंशियल पावर, डिफेंस, 370 भी नहीं, उससे भी बहुत माइल्ड था, 370 भी नहीं था। 370 में तो उनको झंडा मिल गया कश्मीर को, हाँ, उनको प्राइम मिनिस्टर मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया। वहाँ नहीं, वो बड़ा ऑर्डिनरी ऑटोनॉमी थी छोटी छोटी चीज़ों में, कि भाई ट्रेड में, इसमें, और डिफेंस है, कॉमन डिफेंस है, होम अफेयर, सारे सेंटर के पास रहेंगे। तो जिन्ना एक्सेप्टेड इट, नेहरू रिजेक्टेड इट। फिर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, फिर जिन्ना प्राइम मिनिस्टर बन जाता। अगर इंडिया बंटता नहीं तो नेहरू थोड़ा प्राइम मिनिस्टर बनता। फिर वापस गए, फिर 3-4 महीने बाद दोबारा कमेटी आई विद द आइडिया ऑफ पार्टीशन। अब आप बताइए, नाउ यू असेस गांधीज रोल। अच्छा, जब भगत सिंह वगैरह को फांसी लगनी थी, उससे पहले इरविन आया था, एक गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ना, लॉर्ड इरविन आया था। इरविन इज़ ऑन रिकॉर्ड, उसने लिखा है कि हम जब मीटिंग के लिए जा रहे थे तो हमें पूरा यकीन था कि महात्मा गांधी पहली बात ये कहेगा कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की फांसी हटाओ, फांसी नहीं देनी। पर कहते उन्होंने बात ही नहीं की। मीटिंग खत्म होने लगी तो मैंने कहा, इरविन ने, कि डू यू हैव समथिंग टू से अबाउट द डेथ सेंटेंस गिवन टू सुखदेव, भगत सिंह एंड राजगुरु? ही सेज नो, दैट इज योर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, इट इज ऑन रिकॉर्ड। तो डिवीजन ऑफ द कंट्री, गुड और बैड, the responsibility rests squarely with Gandhi and Nehru. When Gandhi was asked, why did you make Nehru the Prime Minister? You know what Gandhi said? He is the only one who asks me questions. पटेल वगैरह बिल्कुल श्रद्धा वाले। आप मुझे बताइए कि 15 अगस्त को हमारी इंडिपेंडेंस क्यों सेलिब्रेट होती है? कैन एनीबडी टेल मी? 15 अगस्त को माउंटबेटन वाज द कमांडर ऑफ द पैसिफिक फोर्सेस ना। जब वो वॉर ख़त्म हुई तो माउंटबेटन को यहाँ गवर्नर भेजा गया। उसको कह के भेजा कि जल्दी जल्दी हिंदुस्तान को आज़ादी दे देनी है, जिम्मेवारी ख़त्म करनी है। इसलिए मैं मजाक में कहता हूँ कि इंडिया का ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर हिटलर था। उसने घुस भर दिया ब्रिटेन में, फ्रांस में, यूरोप के, अमेरिका पैदा हुआ क्योंकि अमेरिका पहले 2 साल दोनों को वेपन बेचता रहा, जैसे अब भी करता है ना। दोनों को 41 में ज्वाइन किया जब उन्होंने पर्ल हार्बर पे अटैक किया जापानियों ने, उनको बड़ा फिर बाद में फैला हुआ। अमेरिका बिकेम रिच ओनली बिकॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। And that's why they even now propagate wars, because they have to sell their military. They are fighting war every year. वो सब दे मामे लगते हैं, मामे, मतलब जहाँ कोई कुछ हो रहा हो तो वो जाके फैसला कराते हैं। ट्यूनीशिया चले गए हैं, अब सेल्फ अपॉइंटेड कॉन्स्टेबल ऑफ द वर्ल्ड। तो माउंटबेटन ने ऐसा, व्हाई डिड एटली वाज आस्क्ड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स
कि why are you so such a hurry to give freedom, independence to India? He said, you know, to keep India, we have to station our army there. We don't have the money now to maintain an army there. और तब तक ये सुभाष बोस ने तो इम्फाल तक तो आ ही गया था सुभाष बोस. जितने इंडियन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी के इंडियन सोल्जर्स जापानियों ने कैप्चर किए, वो सारे आईएनए ज्वाइन कर गए. अंग्रेजों को ये भी एटली ने लिखा है, उसको डर लगा. इरविन ने एटली को पूछा, तो एटली ने कहा कि हमें डर था कि इंडियन आर्मी में रिवोल्ट शुरू हो जाएगा. अच्छा, बॉम्बे में नेवी ने तो रिवोल्ट किया ही था बाद में, है ना, किया ही था. सो यू सी 45 में इसको कहा गया कि फटाफट, क्योंकि पैसा नहीं है, कितनी कॉलोनी थी. एंड यू नो बिटवीन 47 and 49 the entire Asia became independent. फ्रीडम फाइटर तो हमारा हिटलर है. उसने मार मार के हार तो गया वो, पर उसने ना कुटिया इतना उनके, मतलब उनकी फौज. डनकर्क में 1941 when the French 15 days में the German armies captured France. Then the British expeditionary force जो फ्रांस में थी 3 लाख सोल्जर, वो भी थे उसमें. ख़त्म 15 दिन में. जर्मन, उन्होंने मैजिनॉट लाइन बनाई थी, यू नो, इलेक्ट्रिक वायर लगाई थी बॉर्डर पे फ्रांस के, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी. उनके नए टैंक थे पेंजर जर्मन्स के. उन्होंने अपना एक टैंक उसमें से घुसाया, वो तार तूर सारी बिजली बुजली गायब. उस वो 50 फुट के गैप में से आर्मी के 15 दिन में ख़त्म. और एक रेलवे के डिब्बे में पूरे फ्रांस के लीडर खड़े हैं और हिटलर बैठा हुआ है, साथ में जनरल बैठे हुए हैं, और उनसे सरेंडर सिग्नेचर कराया. और जर्मन आर्मी सराउंडेड द ब्रिटिश सोल्जर्स. द ब्रिटिश सोल्जर्स वर कॉर्डन्ड ऑफ इन डनकिर्क. डनकिर्क पोर्ट है डोवर के सामने. तो डोवर की जो वाइट क्लिफ्स हैं उसके सामने डनकिर्क है, अक्रॉस द इंग्लिश चैनल. द जर्मन जनरल वॉन रनस्टेड told Hitler, allow us, we will throw them into the sea. They were, you know, the British soldiers, they ran. राइफलें भी नहीं थी उनके पास, कुछ नहीं था. कहते and इंग्लैंड में भी कुछ नहीं है, कोई आर्मामेंट नहीं, कुछ नहीं है. कहते we throw them into the sea and England is finished. उन्होंने कहा no, now they don't have anything, what can they do? They are now harmless. The mistake Hitler made, he ordered German army against the advice of his generals to invade Russia. 2 फ्रंट खोल लिए ना, 2 फ्रंट खोल लिए. That's why he lost. अगर वो उनकी बात मान लेता तो वो पूरा एक evacuating the British soldiers from Dunkirk is an epic in itself. कैसे किश्तियाँ लेके अंग्रेज पहुँचे, किश्तियों में 2-2, 4-4 को लेके आए, सबको लेके आए, क्योंकि उसने तो छोड़ दिया कि बैठे रहो. Didn't attack. So you see, then Mountbatten now came. Mountbatten ने, well, अंग्रेज़ों की हालत ये ख़राब हो गई थी कि भी they could not retain the colonies. Sardar Patel, you know, basically he was an honest man. Left to himself, he was not against anybody. It is the Muslim League politics, separate electorate, and the experience that all the reserved Muslim seats, the Muslims, 98% of Muslims voted for Muslim. That experience, you see, he realized the coming dangers. But he didn't, I mean, he was a nationalist, which means that he was not against anybody. But then the situation, he didn't have much voice
Gandhi never paid final attention to him. पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, इन लोगों को तो गांधी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था, नेहरू की सुनता था. एंड in fact, when transfer of population was taking place, Patel argued for transfer, but Gandhi and Nehru were against complete transfer. They were against. Why? Patel didn't have a voice. Mountbatten told Nehru, and now Nehru was close to Mountbatten because Mountbatten called Nehru. And he said that we have to give free India. And you talk to your colleagues and select a day which you think is auspicious or good for you and tell me. So he came back to Kripalani and Rajendra Prasad and Patel and उन्होंने कहा कैसे, तो उन्होंने सब ने कहा शुक्ल प्रथमा प्रतिपदा, ये जो मार्च अप्रैल में जब हमारा साल शुरू होता है ना नया, वो डेट, तो शुक्ल प्रतिपदा प्रथमा, तो नेहरू कहता है व्हाट्स दैट, वो क्या पता ये क्या होता है. व्हेन द सीरियल भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हिंदी में बना था, माई डॉटर वॉज 5-6 years old. तो शी आस्क्ड मी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. शी सेड, पापा, wasn't Nehru an Indian? Yeah, he was an Indian. Then why did he have to discover India? Anyways, तो उनको है, तो उन्होंने कहा no, what is the, so he said no, what is that? तो he said कि I think let's leave it to him. कोई agreement नहीं, क्योंकि you see Nehru was a person, kind of a person, many people like that who think that what they do not know is not worth knowing. है ना? He went back to Mountbatten कि सर आप first of all see the status of Patel, Kripalani, Rajendra Prasad. है ना? He won't go by their advice because they all knew he is the blue-eyed boy of Mahatma Gandhi. Why was he? But another substantial reason, उनका सारा खर्चा मोतीलाल नेहरू किया करता था. मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू ने उनको कहा कि जी साडे काके नूं ना जरा चंगा काम कुम करा दो जरा. You know that movement, जो peasant movement हुआ था बिहार का, which was a rare movement, चंपारण पटेल का था. गांधी का कौन सा मूवमेंट है? उसके बाद भी अहमदाबाद में हुआ था वन मूवमेंट, वो भी किया था. हाँ, गांधी ने तो वो सिर्फ सॉल्ट का किया था जब उसको ब्लड प्रेशर हो गया था. एंड पटेल का होल्ड मासेस में बहुत था, मासेस में बहुत था होल्ड. एंड इवन एज पटेल की ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इज ही यूनिफाइड इंडिया 47 में. स्टेट्स थी, आपको पता है ना क्या था, एक ब्रिटिश इंडिया था, है ना? ब्रिटिश इंडिया, that part of India directly ruled by the British, and there was the India which was ruled by the states, by the kings. 553 states, and in the terms of agreement the states were left free. They could join Pakistan or India or choose to remain free. तो पटेल ने उन सबको जुड़ाया, और जिन्होंने दो स्टेट्स ने कोशिश करी कि हम इंडिपेंडेंट रहें, कश्मीर तो नेहरू ने ले लिया कि कश्मीर मैं देखूंगा, है ना? और कश्मीर आज तक देख रहे हैं, वो नेहरू ने देखना शुरू किया, अब तक देख रहे हैं, और बाकी सारे पटेल देखे. और दो स्टेट्स ने कोशिश की, एक तो ये इसके जूनागढ़, उसने कोशिश करी कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे. अच्छा, जिन्ना का दादा भी हिंदू था, भुट्टो का दादा भी हिंदू था, है ना? अच्छा, ये सबरे कन्वर्ट हो गए, ये बड़े चौधरी भी बन गए, बड़े इंपॉर्टेंट. जिन्ना's grandson, great grandson नस्ली वाडिया इज इन बॉम्बे. अभी भी वो जिन्ना की कोठी उसी में रहते हैं, वो नस्ली वाडिया.
तो वो जिन्ना की फैमिली तो जो है वो तो यहीं रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। जिन्ना खुद वाज आफ्टर पाकिस्तान बना, ही वाज हिमसेल्फ वेरी डिसअपॉइंटेड। यू सी, ही डिडंट इमेजिन दिस काइंड ऑफ। उसको लियाकत अली खान ने और सुहरावर्दी ने बेवकूफ़ बनाया बाद में। Nobody knew that he was dying of tuberculosis. Nobody knew. अगर वो पता चल जाता तो पार्टीशन की हिस्ट्री और होती। Anyways, coming back to the main narrative. So he went to Mountbatten. कि जी वो we have not been able to decide. So you choose the day. He said, oh, उन्होंने he shut his eyes and said, okay, 15th August. You know why? Because on 15th August 1945, the Japanese lay down their arms before Mountbatten. पाकिस्तान साढ़े तो भी ज़्यादा बेवकूफ़, उन्होंने कहा इंडिया 15 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 14 ਨੂੰ, मतलब अपना कोई नहीं सोचा कि भी कोई डेट और सोच लो हैं, ਅਸੀਂ एक दिन पहले। अब ये तो सिचुएशन थी डिसीजन। इंटरिम जो पीरियड था, डोमिनियन स्टेटस मिला था। राजगोपालाचार्य वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नॉट राष्ट्रपति। एंड नेहरू हिमसेल्फ सेड, आई एम द लास्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब एक और बड़ी बात बताऊँ आपको, रिसेंट जब ये मोदी इलेक्ट हुआ है तो मैनचेस्टर गार्डियन लंदन का जो न्यूज़पेपर है, आप उस दिन का जो रिजल्ट निकले हैं उस दिन अगले दिन का वो पेपर देखिए, हेडलाइन, टुडे इंडिया बिकम्स फ्री। मुगल डायनेस्टी, ब्रिटिश वॉइसरायज की डायनेस्टी और नेहरू डायनेस्टी, ये भी डायनेस्टी है। तो एक देसी आदमी, वो एक पाकिस्तान का वीडियो था एक, वो कह रहा था कि नरेंद्र मोदी की पूरी पोशाक और जूती के हमारे नवाज शरीफ के जूते के तस्मे से कम पैसे में नरेंद्र मोदी की पूरी ड्रेस आ जाती है। तो पहली बार आदमी आया जो देसी है ना। अच्छा, और होक्स नहीं, आपका क्या ख्याल है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो सरदार वगैरह जो अजमेर जाते थे, जैसे क्या वो अंदर से कोई बड़ी पूजा भाव से जाते हैं? पॉलिटिकल है, सब पॉलिटिकल है। अब राहुल गांधी भी पहुंच जाता है ना। हिंदुओं ने तो अपने धर्म छोड़ दिए है ना। अच्छा, इसलिए क्योंकि इनके मौलवी बहुत तेज हैं, वो इनको खींच के रखते हैं, तो इनके यहाँ चलता रहता है काम। हिंदू मैरिजेज होती हैं तो उसमें पंडित को कहते हैं, पंडित जी फटाफट कर लो, 100 रुपये ज़्यादा देंगे, आधे घंटे में फटाफट हो जाए, मंदिर को मंत्र का किसी को। आपने सुना नहीं, वो आएगा, आरिफ मोहम्मद खान जी ने पब्लिक लेक्चर दिया उसमें, जिसमें मैं भी, वो किताब रिलीज़ हुई ना हमारी, उसमें उन्होंने लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान गया तो किसी शादी में गया, घर में ही रिश्तेदारी में, बहुत लोग आए होते, अच्छे अच्छे फैमिली के, और दूल्हा दुल्हन दोनों गायब हैं, काफ़ी देर आए ही नहीं। तो कहते फिर मैंने जो मेरे जिन रिश्तेदार थे जिनके वो बेटा बेटी शादी हो रही थी, मैंने कहा कि वो कितने, वो कहते यार है हिंदी फिल्मां ने ना, वो देख देख के वो दोवें पीछे चुप करके ना बाग च लावां फेरे लै रहे, फायर दे चारों तरफ वो लावां फेरे ले रहे ने, फिर आगे निकाह करनेंगे। 2014 में क्या हुआ, अच्छा उससे पहले बाला साहब ठाकरे ने पहली बार हिंदुओं को कहा कि भी थोड़ी अपने बारे में इज्जत रखो, हैं, इतने क्यों हर चीज़ छोड़ के बैठे हुए हो, धर्म कर्म छोड़ के बैठे हिंदू। पक्की बात है, नॉर्थ के बचा हुआ था साउथ में, और इंटरेस्टिंगली साउथ में जहाँ हिंदू धर्म बचा हुआ है वहाँ कांग्रेस जीतती रही। इवन इन 1975-7 जब इंदिरा गांधी नॉर्थ में एक सीट भी नहीं जीती, साउथ में सारी सीटें 160, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस इज नॉट सीन एज एंटी हिंदू।
In North, it began to be seen as anti-Hindu. You see? अच्छा, फिर बाला साहब ठाकरे, अच्छा, मूवमेंट तो देश में बिकॉज ऑफ द वेरियस एक्ट्स जो ये कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी जो कर रही थी, डिवाइड वगैरह करना। डिवाइड में क्या होता है कि फेवरेटिज्म भी करनी, फेवर करो, है ना, स्कीमें लाओ, ये लाओ, तो लोग सोचने लगे एक तो ये करप्ट बड़े हो गई, गवर्नमेंट बड़ी करप्ट हो गई, दूसरा इन्होंने ना मटीरियलिज्म, भौतिकवाद सरकार ने बड़ा सिखाया। आप एक देखो कि सिख अपने सिख धर्म के स्कूल खोल सकते हैं, सिख बच्चों को वो अपना गुरु ग्रंथ साहब वगैरह पढ़ा सकते हैं, मुसलमान भाई अपने मदरसे खोल सकते हैं, वो वहाँ कुरान पढ़ा सकते हैं। अच्छा, बाकी जो हमारे स्कूल हैं प्राइवेट, वो तो सारे क्रिश्चियन स्कूल हैं, चाहे चला हिंदू रहे हो, सारे मिशनरी स्कूल हैं। मेरी बेटी भी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में पढ़ी, है ना। हमारे बच्चे सारे जो बच्चे पढ़ते हैं, वो ये तो करना आ ही जाता है उनको, और कोई है। अच्छा, इनको देखा देखी जो संत विवेकानंद स्कूल था, वो भी सेंट विवेकानंद हो गया। सेंट लगा दो, इंग्लिश मीडियम, पैसे कमाओ, बिकॉज दिस इज एन इंडस्ट्री। जिन स्टेट्स में 47 से पहले, गुजरात और महाराष्ट्र में, अच्छे हिंदू परिवार अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में नहीं भेजते थे, आज उन्हीं स्टेट्स में सब अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं, गुजरात तक में। तो ये जो एक इम्बैलेंस डेवलप हो रहा था, कल्चरल लॉस हो रहा था। आप कितने हिंदुओं को जानते हैं जो मंदिर जाते हैं? आप जानते हो कोई? साउथ में आप जाओगे तो आप सुबह उठोगे ना, होटल में खड़े होगे तो आपको हजारों लोग नंगे पैर, लुंगी अपना ऊपर बांधी हुई, हाथ में फूल लेके मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते हैं। यहाँ कोई नहीं जाता, यहाँ कोई नहीं जाता। तो यहाँ फिर घर में बनाए हुए हैं मंदिर लोग। नहीं, घर में भी, जैसे मेरे घर में मैंने ये ड्यूटी जो है ना, ये छोटा काम अपनी मिसेस को दे रखा है भगवान का, और बाकी जो काम है बड़े बड़े कि भाई वर्ल्ड पीस कैसे हो, है ना, वो सारे मैं करता हूँ। दुनिया जो कि कभी नहीं हो सकती। मतलब इस तरह के काम, भाई एटम बम बनाना है कि नहीं बनाना, ये डिसीजन हम वाइफ पे नहीं छोड़ते, ये हम लेते हैं। बाकी उनको हमने दे रखा है कि भाई आप पूजा पाठ, वो वैसे भी वैष्णव हैं, और मैं पंजाबी आर्य समाजी फैमिली मेरा बैकग्राउंड, पर मेरी मदर आर्य समाजी भी थी, पर वो बिलीवर थी, पर इन ए डिफरेंट वे। शी वॉज ए बिलीवर इन द काइंड ऑफ कबीर काइंड ऑफ थिंकिंग, मन चंगा कठौती च गंगा, उसी ये उनका था। पर मैं थ्रू माई स्टडी, थ्रू वट शी टॉट मी, आई बिकेम मोर सनातन than my father. My father was nothing, वो तो कुछ नहीं. That people like Patel did not have a much voice because Gandhi never paid much importance to this group. He was with Nehru and the leftists. Do you know that whenever Nehru wrote to the members of parliament, Congress members, he always started his letter as "Dear Comrade." He called himself a socialist, but he was left-oriented, pro. And Indira Gandhi, quite easily in 1967, she took the support of communists. And from the beginning, education was handed over to पहले मौलाना आज़ाद, सैयदीन, हुमायूं कबीर, फिर वो जो पंडित थे, 2 पंडित थे, वो पंडित भी ऐसे ही थे, मतलब पंडित क्या नहीं, कोई पंडित थे। सब एजुकेशन जो थी मतलब कि उन हाथ में रही, जो कि जिसने एक एजुकेशन की 2 मोटी चीज़ें थी। एक तो संस्कृत नहीं पढ़ानी, संस्कृत को इनकरेज नहीं करना। ये पंडितों ने बोला? नहीं, एजुकेशन की पॉलिसी। हाँ, इट वाज अ कॉन्शियस पॉलिसी। यू सी, बिकॉज इफ यू स्टार्ट टीचिंग संस्कृत,
आरिफ मोहम्मद खान जितनी संस्कृत कोई हिंदू नहीं जानता। आपने कभी सुना उन्हें संस्कृत बोलते हैं? अब्दुल कलाम साहब जो प्रेसिडेंट थे, ग्रेट संस्कृत स्कॉलर है ना। और काफ़ी मतलब आई नो मैनी पीपल, मतलब हमको संस्कृत नहीं आती, पर जो लोग भारत के ज्ञान में जाना चाहते हैं वो संस्कृत सीखते हैं। तो संस्कृत को निकाल दो। इन माई टाइम संस्कृत का टीचर सबसे बेचारा माड़ा आदमी माना जाता था, सबसे माड़ा कमज़ोर आदमी, मतलब बिल्कुल। और ये था इसको कर लो इसमें मार्क्स आ जाते हाँ, मार्क्स आ जाते हैं, गर्दान होती है, रेक्टिफिकेशन होती है, रामा 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 करो अपना नंबर आ गए, है ना, रामा रामा रामा। So Sanskrit was, the British were, during the British period, they encouraged Sanskrit scholarship. अंग्रेज खुद बड़े स्कॉलर हुए। You see? Calcutta University was the गढ़ of Sanskrit studies till 1950. फिर लेफ्टिस्ट आए, खत्म कर दिया, फिनिश। कैलकटा यूनिवर्सिटी नो संस्कृत, फिनिश। तो संस्कृत निकाल दो, नंबर 1। सेकेंडली, सिलेबस जो है वो न्यूट्रल, एंशंट इंडिया नहीं पढ़ाना, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, स्ट्रेस ऑन मॉडर्न इंडिया। नेहरू वॉज कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इल ऑफ पीपल, पीपल लाइक राजेंद्र प्रसाद, के मुंशी, सरदार पटेल, वो कल्चरली डिफरेंट लोग थे। और पॉलिटिकल कन्फिग्रेशन, who were being backed by the British? Do you think Patel was being backed by the British? और क्या राजेंद्र प्रसाद? Nehru was being backed by the British. Gandhi was being backed by the British. महात्मा गांधी, I mean. For him, he was a महात्मा। इंडिया में 47-50 के बाद दो प्रकार के नैरेटिव चले, क्योंकि सारे लोग चाहते थे पटेल बने प्राइम मिनिस्टर, बन गया नेहरू। तो जो मिथिफिकेशन हुआ वो नेहरू को एलिवेट करना और पटेल को डेनिग्रेट करना, सारी मिथ्स इसलिए बनी, इस प्रकार की बनी। एंड दे आर ऑल अनट्रू। ही वाज कॉल्ड आयरन मैन बिकॉज he was able to unify 553 states. And he pointed out to Nehru that you are making a mistake. Even when Nehru told General Kunwal Singh to stop when he was in Gilgit, he is on record. He told him you are making a mistake. At the time of Hindu Code Bill, he opposed him. He said, मेरे जिंदा नहीं। It is when he died, तब उसने हिंदू कोड बिल बनाया। Even after he died, वो planning commission भी बना. He was against it. He was against it. Patel didn't like it. हाँ, so even this charitable endowment act, अब बताइए, सारे मंदिरों की इनकम तो गवर्नमेंट के पास है, गुरुद्वारों की नहीं है, मस्जिदों की नहीं है, चर्चेस की नहीं है ना। हाँ। तो इससे क्या होगा? ये सारे हिंदू देखते रहे ना। और हिंदू फिर भी हिंदू जो था, हिंदू बनिया है बेसिकली, है ना, उनको पैसा मिलता रहे। देखिए, चाइना और इंडिया में एक फ़र्क है। चाइना और इंडिया में देयर इज़ अ डिफरेंस। चाइनीज बिल्ड बिग, चाइनीज वॉल देखिए, दैट इज़ द ओनली मैन मेड ऑब्जेक्ट विच यू कैन सी फ्रॉम द मून। स्पेस से आपको एक ही मैन मेड ऑब्जेक्ट दिखता है, ये। एंड डू यू नो दैट द second after that wall, there is a wall running for 36 miles in India. राजस्थान में समझा है। कुंभलगढ़। हाँ, कुंभलगढ़ की। चाइना में तो वो वॉल जो थी वो इट वाज मेड टू स्टॉप द मंगोल इन्वेशंस। ऊपर से मंगोल, उसके ऊपर इतनी हवा चलती है पूरी। आई सेड लास्ट टाइम ना, ज्योग्राफी जो है कि नॉर्थ की इज आइस, when Altai mountains to Himalayas is wind, and Himalayas to the sea is here, sun, heat. इतनी हवा चलती है कि unless you hold on to something, you will be blown away. Chinese make big. Indians have, because of उनकी 1000 साल की जो हार हुई या हारे आर्मीज के सामने, हर वक्त नहीं हारे, पर जब भी हारे नॉर्थ में खासकर हारे, तो उनकी बड़ी चीज़ें छोटी हो गई। बड़े मंदिर तो कोई नहीं रहे,
तो छोटे छोटे मंदिर बने, द्वार में मंदिर बना दिया, घर में मंदिर बना लिया, जैसे चांदनी चौक में भी बने हुए हैं ऐसे छोटे बना दिए। इससे हमारे स्टैचू भी छोटे हो गए। अब सुभाष बोस का कद 5 फुट 8 इंच था, पर आप अगर मोदी नगर में देखोगे तो उसका 4 फुट 6 इंच का स्टैचू बनाएंगे। इन चाइना यांगत्से रिवर जड़ा उनका, द रिवर ऑफ सौरो जिसको कहते हैं, ह्यूज रिवर, उस पे डैम बनाया था सम 5th 6th सेंचुरी में किसी जनरल ने। उस जनरल का स्टैचू उसके किनारे बना हुआ है। फीचर से तो लगता है जैसे हम राणा प्रताप नहीं बनाते ऐसे मुंह शूच ऐसे करके, उसी तरह 40 फुट का स्टैचू, ह्यूज स्टैचू बनाते हैं वो, 30-30 फुट के, 40-40 फुट के। हम छोटे छोटे बनाते हैं। तो मोदी ने सोचा कि इसको भी बदला जाए। हम छोटे होते गए ना, हमारा बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है, हम उसकी बॉन्साई बना देते हैं, है ना, छोटा से लेके उसमें वो बेचारा इतना सा बड़ का पेड़ बना देते हैं, पीपल को इतना कर देते हैं। तो 2014 में व्हेन Modi came, the change that was, there was a sudden change. It was not anti-Muslim. There is a view that he is anti-Muslim. No, क्योंकि all the economic social schemes he has started, they are for everybody equally. लड़कियों को फीस की देते हैं, पैसे देते हैं, तो हिंदू लड़कियां, क्रिश्चियन लड़कियां, मुसलमान, सबको मिलता है। गैस दी है, सबको दी है, सिलेंडर दिया, सबको दिया है, वो नहीं है। But he has tried to make Hindus realize that they are Hindus. कि पूजा पाठ तुसी भी कर लिया करो थोड़ा यार। वो खुद एग्जाम्पल से करते हैं, वो तो करते हैं, वो तो भक्त है, वो तो है ही, वो तो नराते रखता है बाहर। फर्स्ट टाइम ही वेंट टू अमेरिका, ही ड्रिंक्स ओनली वाटर फॉर 9 days, जी, नींबू डाल के पानी पीते बस। ओबामा कॉल्ड हिम फॉर डिनर, और डिनर सच की तो वो कहती मैं तो पानी पीता हूँ, है ना, वो पानी पीता रहा। और रात को 2:30 बजे तक ओबामा बैठा रहा कि तुम पानी पीते हो तो इतना बोलते कैसे हो। यू सी, मोदी इज नॉट एंटी मुस्लिम एट ऑल, ऑल्दो कांग्रेस एंड अदर पार्टीज आर क्रिएटिंग द प्रोपेगेंडा दैट ही इज एंटी मुस्लिम, एंड ए सर्टेन क्लास ऑफ मुस्लिम्स ऑल्सो हु फील थ्रेटन्ड बिकॉज देयर पावर में गो। अगर उन्होंने जैसे वो क्या ट्रिपल तलाक खत्म किया, तो पहली इलेक्शन में मुस्लिम लेडीज वोटेड एंड ब्लॉक फॉर हिम। नहीं तो यूपी में 80 सीटें आ सकती हैं, 80 में से 78 सीटें। अगर मुस्लिम वोट ना होता तो 78 सीटें नहीं आ सकती। अंडर मोदी इंडिया इज बिकमिंग ए वेरी स्ट्रांग कंट्री इंटरनेशनली, इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली. Already the Indian army is number 4 in the world. Our economy is number 5. Our foreign exchange reserves are more than that of Russia, more than that of Britain. So when Modi took over, हमारा foreign exchange $6 billion था, अब हमारा $660 billion है. We are becoming economically rich, we are becoming militarily strong, mainly because we are cultivating our own genius and creativity. There was a statement yesterday by Modi that I don't want any conflict, but in the case of conflict, the enemies will discover that India has weapons that they have not even dreamt of. You see, इनको तो महाभारत रामायण से आते हैं ना, आग लग गई, बारिश आ गई, तीर गया, उसको ढूंढ के मारा, फिर वापस आ गया, ये सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी तो है ना. सो दे इनफैक्ट इट इज दिस इंडियन पीपल, masses are behind him. There is a lobby, there are lobbies. There is the Lutyens lobby, ये जो यहाँ साउथ दिल्ली में रहते हैं कोठियों में, और ये जो खान मार्केट के बार में बैठ के, है ना, डिस्कशन करते हैं, इंडिया का भविष्य डिसाइड करते हैं, है ना, विस्की रख के इंडिया का भविष्य बनाते हैं, वो लोग हैं. और कांग्रेस है,
जो उसकी पॉलिटिकल पावर गई। बिजनेसमैन जो नंबर 2 की रसीदें बनाते थे, सेल्स टैक्स लोगों से लेते थे, गवर्नमेंट को नहीं देते थे। अब आप जीएसटी कर दिया, अब आपको देना पड़ेगा। अब वाई इज इंडिया एबल टू अफोर्ड कि 50,000 टन कणक मुफ्त की अफगानिस्तान को दे दी, 50,000 टन कणक मुफ्त की लंका को दे दी, 110 कंट्रीज को वैक्सीन दी है इंडिया ने। कहाँ से पैसा आया? पैसा वही आया कि जो आगे लोग खा जाते थे, बिचौलिए, अब वो नहीं खा पाते। डिजिटल इंडिया वर्ल्ड का 40% ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन इज इन इंडिया। That is a fact. That's right. So the money हर महीने 1,60,000 करोड़ जीएसटी आती है, वो पैसा आता है। इतने 2 साल 2.5 साल 70 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दिया। कहाँ से आया? अब भी है। अच्छा, अफगानिस्तान, लोग कहते थे अफगानिस्तान आ गया, तालिबान आ गया, यहाँ आतंकी बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि खाना नहीं, पहले तो दवाइयाँ भेजी, अम्बेसी वापस ले ली, दवाइयाँ भेजी, फिर उन्होंने कहा खाना नहीं है, कनक, तो उन्होंने कहा मैं तो रेडी टू गिव। पाकिस्तान ट्रक नहीं निकलने देता, पाकिस्तान डजंट अलाउ द ट्रक्स। सो ही टोल्ड, आवर गवर्नमेंट टोल्ड तालिबान गवर्नमेंट, तो तालिबान दे टोल्ड पाकिस्तान, ओके आवर ट्रक्स विल कम, हम बॉर्डर पे अपने ट्रक में ट्रांसफ़र करेंगे, पर हमारे ट्रकों के ऊपर दोनों तरफ हिंदुस्तान का झंडा होगा। पता लगना चाहिए लोगों को कि ये कनक कहाँ से आ रही है। उनका झंडा लगा होता है, अफगान ट्रक्स हैं, दोनों तरफ इंडिया का झंडा होता है, झंडा लेके, तो वो 50,000 टन कनक। तालिबान गवर्नमेंट ने इंडिया को कहा है कि आप अपनी एम्बेसी खोलो, और जो प्रोजेक्ट आप चला रहे थे यहाँ, जो आप बना रहे थे, आप बनाने शुरू करो। और इंडिया बना रहा है। तो ये हिंदू मुस्लिम बात नहीं है। यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम बात है, ये पॉलिटिकल कंट्रोल की बात है। हु विल रूल इंडिया? Some people think that by dividing people along lines, you see, that they'll gain power. And it is not only dividing between Hindu Muslim. Hindus also have to be divided. So I think it's not just a question of Hindu Muslim, anti-Hindu. It is because India is becoming strong. People who have lost power, people who have lost money, people who used to make money by corrupt practices, they have all been checkmated. दे आर द वंस। ये जितना फार्मर मूवमेंट था, ये फार्मर्स का मूवमेंट थोड़ा था, खालिस्तानी वो उनका था। नहीं, खालिस्तानी भी इतने नहीं थे। वो जो दलाल नहीं होते मंडियों में, आड़तियों का था, उनका से फंडेड था सारा। That is a shame that. एंड देयर इज कुछ खालिस्तानी वाला। द क्लास विच यूज्ड टू मेक मनी बाय whose wealth was ill-gotten wealth, they have been checkmated. There is a transparency, honesty, transparency. Can you imagine, me and my wife, we submitted our income tax return. Within 4 days, we got the refund. Within 4 days. You could not imagine earlier. अगर आपका रिफंड बनता है तो आपको जाके वहाँ बैठना पड़ता, आपसे पे अगर आपका 13,000 का रिफंड है तो 1,000-1,500 तो आपको देना पड़ता, तब जाके मिलता। एंड मोदी जी's लीडरशिप इज कॉजिंग वरी टू हिज अपोनेंट्स। द अपोनेंट्स आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी मुस्लिम, ऑर्डिनरी हिंदू, ऑर्डिनरी सिख आर नॉट हिज अपोनेंट्स। इट इज़ द रूलिंग क्लास जिनके हाथ में पावर थी, जी, वो हैं। अब जैसे द मोमेंट Muslim women and girls, particularly girls, started voting for Modi, who got worried? Maulvis, political class, कि हमारे हाथ से पावर जाएगी, ये तो बीजेपी तो हर जगह जीत जाएगी, ये तो फिर हमारा क्या होगा? तो हिजाब की मूवमेंट शुरू करा दी, है ना? हिजाब की मूवमेंट शुरू करा दी यूपी इलेक्शन से पहले। आड़तियों ने फार्मर मूवमेंट शुरू करा दी। ये पावर का गेम है।
आजकल बीजेपी के अंदर मोदी की अपोजिशन है कि ये आउट ऑफ द वे जाके माइनॉरिटीज के लिए काम कर रहा है। एक्चुअली आप देखो, कोई एक किसी से हार्ड फैक्ट पूछा जाए, मेंशन वन स्कीम ऑफ मोदी which is meant only for Hindus, but there are some schemes which are meant only for Muslims. There are, you see. तो इसलिए ये हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन तो बनाया जाता है पॉलिटिकली। असल में क्या है कि एक इस्लाम में एक जो एडवांटेज क्या है कि वो जो फ्राइडे को इकट्ठे होते हैं ना सारे, एक मौका मिलता है एक आदमी को उनको समझाने का, गलत ठीक समझाना। हाँ, यहाँ बाकी लोग इतने इकट्ठे नहीं होते। गुरुद्वारे में जाते हैं तो वो धर्म को माने जाते हैं, लंगर लोगों को खाना खिलाने या जूती साफ करने को। गुरु ग्रंथ साहब वो भी नहीं पढ़ते। कुरान कौन सब पढ़ता है? वो पढ़ता है? कौन पढ़ता है? गुरु साहब कौन पढ़ता है? हमारे वेद वूद कौन पढ़ता है? भगवद गीता नहीं कोई पढ़ता, कोई भी नहीं पढ़ते। पर अपनी आत्मा को शांति। तो वो जो इकट्ठे होके ना, ये इकट्ठे होने के कारण ज़्यादा वायलेंस, अभी ये जो वायलेंस हुई, जैसे वो कन्हैया लाल ये वो हुआ, वो इसीलिए कि वो मिसलीड किया लोगों को, बढ़ाया चढ़ाया कि भी ये किया वो किया, इसने वो किया, इसने ये किया। किसी को क्या पता है किसने क्या कहा, क्या लिखा, क्या नहीं। और रहमानी साहब जो उसी इंटरव्यू में बैठे थे वो भी बोले, उनकी बात नहीं करते। तो इसलिए ये इट इज़ नॉट डन, इट इज़ फॉर द सेक ऑफ कंट्रोल, ताकि वोट हमें मिले, इलेक्शन हम जीतें, हमारे लोग जीतें, हमारी पार्टी आए पावर में। ममता इसलिए आए कि उनको लगता है कि ममता सपोर्ट करती है और ममता बीजेपी को अपोज करती है, मोदी को अपोज करती है। ये जो अब्रॉड से इनविजिबल फोर्सेस है ना, like US and Britain and all these people, they also have ना, ये जो United Nations है and all that, they have also some benefit by maligning a certain community। ये जो international forces जो एकदम से कूद पड़ते हैं। I will not say हिंदू शब्द तो इज ए सिंधु से, और वैसे हिंदू पुराना भी शब्द है, ऋग्वेद में भी है, पर बेसिकली सिंधु, क्योंकि ईरानी लोग दे वर नॉट एबल टू स्पीक दे स्पोक हा, सो दे सिंधु बिकेम हिंदू। जो सिंधु नदी के उधर लोग रहते हैं जितने भी, ये हिंदू हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि जैसे भागवत जी ने भी कह दिया कि भाई यहाँ जो भी रहता है हिंदू है। अरे ये भी फैक्ट है, यू सी दैट व्हेन पीपल गो टू हज, तो वहाँ के जो हैं वो बड़े क्या के इमाम, वो उनको मिलने आते हैं तो पूछते कहाँ से आए, तो बोलते इंडिया से। अच्छा हिंदू हो? वो हिंदू ही कहते हैं। वह मैं हिंदू, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो हज पे हाँ। कहते हैं हाँ भाई यहाँ सब आते हैं, जर्मन भी आते हैं, हम तो उनको जर्मन ही कहते हैं ना। जो जर्मनी से आते हैं वो जर्मन है, हिंदुस्तान से आते हैं आप हिंदू हैं तो आप मुसलमान। ये एक आइडिया है। बट दी वैदिक सिविलाइजेशन इंडिया की, इंडिया स्रोत इज द वैदिक सिविलाइजेशन। फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन 4 systems came out: Sanatan, Jain, Bauddha और Sikh. There is the other knowledge culture, there are 2 na? The other is Abrahamic, Middle East की, Hebraic, Jewish कह लो, Hebraic. Here again there 3 systems came out: Judaism, Jews, Christianity और Islam. वहाँ 3 है, यहाँ 1 है. The basic difference is that in those 3 systems they are one God people, एक ईश्वरवादी, मोनोथिस्टिक, मोनिस्टिक, एक, सिर्फ गॉड ही एक नहीं है, फिर वहाँ ट्रुथ भी एक है, ठीक आदमी भी एक है, रेस भी एक ही अच्छी है, एवरीथिंग बिकम्स वन, मोनिज्म, monotheism leads to monism, you see, and it becomes totalitarian. See, one God people. Still, these one God people, they fight each other. Because the God is one, it is formless, nirakar, but it is not nirgun. It is not attributeless. It is, Spinoza said,
Hebraic God is an angry God. Angry God. So, one God, but my God, not your God. अगर एक ईश्वरवादी तीन लोग आपस में क्यों झगड़ते हैं? Because it is one God. It is formless. पर मेरा, तुम्हारा नहीं. मेरे गॉड की ये प्रॉपर्टीज हैं, आपके गॉड की ये प्रॉपर्टी. But anyway, Abrahamic is a theocentric system. Theos, God-centered. Vedic knowledge system is human life, not human life, Jiva-centered, life-centered system, not God-centered. Therefore, in fact, Buddhism and Jainism have no God. Even Hindus do not have a God. We don't have a God. See, six darshan, astic darshan, in Sankhya, in Mimamsa, in Vaisheshika, and in Sankhya, Vaisheshika, and three, no God. In the God hai nahi. And even in yoga, there is Ishwar is a very mild kind of. They call astic. हाँ. No? कहते हैं आस्तिक हैं, but they are आस्तिक because they accept the authority of Vedas, not because of God. So it's a God-centered and Jiva-centered, life principle-centered. That God is outside the creation. He has created it. Our Brahmana is inside the creation. Inside the पूरे universe में immanent है. That is why the universe is sacred. Everything is sacred. There is sanctity to everything, isn't it? Sanctity to everything. वहाँ नहीं है. Now, our system, which is not God-centered, but life-centered, and a highly knowledge-centered system, knowledge-centered, because zero, our invention, infinity, our invention, pi, our invention, numerals, our invention, world's first grammar, world's first book of mathematics, world's first book of meter, world's first book of sociology, world's first book of astronomy, and you're going to go on and on. We're all composed here. Knowledge-centered civilization, driven by knowledge. And knowledge is held in great respect here. राजा तो अपने राज्य में पूजा जाता है, ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते. Knowledge की बहुत इज्जत है. Knowledge centered, therefore it is a very liberal, tolerant, often quoted ekam satya vipra bodha vadanti. There is a truth out there, but everyone predicates in a different way, and all are. Even Bhartrihari says, swa vikalpja vada bahudha mata. सब ठीक है. हर एक व्यक्ति, every person according to his own predilection, creates his own system. All are valid. What we need is an ekatva buddhi, a unifying, not one, not unitary, unifying intellect, because ekatva buddhi sarvavad avirodhini. The unifying intellect is not opposed to any. Our civilization is an alternative civilization. Alternative. No armies have ever marched out of India. Ideas have always marched out of India. Ideas. The Silk Route was an idea route. The entire Asia is immersed in Indian knowledge. And even today, in European countries and other, voluntarily people are, coming to this system of thought. So this is seen as a threat to the Abrahamic civilization. The Hindu civilization, it is out of 46 human civilizations, 46 UNESCO list, the only civilization to continue to survive and alive is the Hindu civilization. We have records, archaeological and otherwise, going back to 10,000 years. The Vedas themselves are more than 7,000 years old. A civilization which composed such great work, you can imagine how old it must have been. Thinking kitna. If Panini's grammar, which now NASA is using, is 7th century BC and is considered a model for computational,
systems, and he quotes 10 grammarians before him, then you can imagine how many thousands of years ago Indians were thinking of language and grammar thought. So ancient knowledge-centered civilization, the only surviving civilization, it is an alternative civilization. So what the problem is, you raise the question of why American universities, America, even Trump was brought down by lobbies. Trump had the same opposition in America that Modi has in India. You see, only Trump was a Jat and Modi is a Bania. Trump was a Jat, Moti Buddhi. So he lost. Otherwise, there was a lobby working against him. He was a much better president than this. If Trump had been the president, there would have been no Ukraine war. No Ukraine war. So you see, alternative civilization, which threatens the Abrahamic civilization, that is the opposition. And the amount of funding which comes from oil to the American lobbies which are actively promoting anti-India, anti-Modi, anti-everything, they are being promoted by money, it's all funding. Missionaries, Tamil Nadu alone, till up to pata nahi, but till Modi came, I know, almost 4,000 crores every year to the missionary work in. I remember traveling through South from Chennai to Chidambaram, nothing. Today, as you travel, every hill has a cross, huge cross. So you see, the funding which is being funded as a threat, as an alternative civilization, because in the Old Testament, there is a clear injunction by God to Adam that I have made you in my image. The fish of water and fowl of the air are for you to enjoy. Exercise dominion over them. So, the Western civilization के roots में है exercising dominion over others. And India under Modi, India till Modi was under them. आपने फोटो देखी है, 10 लीडर खड़े हैं, मनमोहन सिंह बेचारा, कोई मनमोहन सिंह से बात नहीं कर रहा, सब आपस में हाथ मिला रहे हैं. अब मोदी गया तो मोदी बीच में है, सारे उसके चारों तरफ खड़े होके उसके पीछे पीछे चल रहे हैं. So this is what they don't like. India is getting out of control. They would like to control. And Modi is trying his best to not to be controlled by anybody. And Modi is true to friends. This is very important. He has been true to Putin, Russia. He, in spite of all the warning by Biden, he took oil from. And the interesting thing is, this is of course underground, the European states approached India, you take a lot of oil from Russia and you give it to us. 1940 to 45 modern period है, साइंस का पीरियड है, रीजन का. 5 साल में 5 मिलियन ज्यूज को फैक्ट्रियां लगा के मार डाला. And not one Christian nation condemned it. Only in 1985 पोप ने माफ़ी मांगी. उस वक़्त के पोप ने भी माफ़ी नहीं मांगी. फैक्ट्रियां लगा के नाखून निकाल लिए, बाल निकाल लिए, स्किन निकाल ली. हाँ, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. तो दैट सिविलाइजेशन, बड़े उस सिविलाइजेशन को हमें पढ़ाया जाता है कि जी ये बड़े, देखो हमें भी तरक्की करनी है. ये तरक्की, डेवलपमेंट, ये कोई तरक्की है? इससे तो हमारे बड़ा बढ़िया है कि साधु इतना दीजिए जितने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए. बस जो गेस्ट आए उसको भी खाना मिल जाए, मैं भी खा लूँ, इतना काफ़ी है. पैसा खूब कमा लो और ये करो. सो यू सी व्हाई दिस इज डन. इट्स बिकॉज with increasing strength, and it is, I tell you, arthik, economic or military, ultimately the strength comes from knowledge centric, jnana, which is a
civilizational value. Knowledge is India's civilizational value. And in fact, the Silicon Valley is run by Indians. You see, all the CEOs of major countries of the world are Indians because Indian mind is tuned to knowledge. है ना? So knowledge centric है. So the power, this power must not be allowed to take shape as economic or military welfare, which Modi is doing. So they are attacking these days बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता उनके अपना. I was surprised myself that the so-called liberal lobby is much more strong in America than in India. Much more strong. Stormed the Capitol Hill also, no? जो बाइडन जब बना था वहाँ पे, never seen in the seat of democracy जिसको कहते हैं. Can you imagine people storming there? वो तो यहाँ भी नहीं हुआ. How much they have gone crazy.